Hello, students. I welcome you all in the online classes and I hope you all are doing well. So, today in biology, we're going to start new chapter and the name of chapter is Control and Coordination. Okay? First of all, I will tell you what are the contents you have to deal within this chapter. So, what is control and coordination? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे. Then animal nervous system, sensory receptors, structure of a neuron, passage of impulse, reflex action, human brain, plant movements, plant hormones, animal hormones, and finally endocrine system. So these are some of the contents which we have to deal with in this chapter. So starting with the chapter, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन व्हाट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सो कंट्रोल, it is a power of restraint and regulation by which something can be started, slowed down or stopped. So control is a sort of power. ओके ये एक तरह का पावर है जिससे कोई भी चीज़ स्टार्ट हो सकती है या उसको स्लो डाउन किया जा सकता है या फिर उसको स्टॉप किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ यहाँ पे. इफ वी आर कंसिडरिंग द बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, you know that there is organ which ultimately control the whole body of human being, and the organ is brain. Okay, and you know as well that there are many organs present in the body and they are performing different functions. So ultimately these function has to be done in controlled manner. Okay, so this organ, that is brain, is overall controlling all part of the body and helping them to perform the functions in controlled manner. So in this chapter we will be studying about this control. Okay, now what is coordination? It is the orderly working of different but interrelated parts so as to perform one or more activities smoothly. So coordination means to perform in a coordinate way, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना. ओके, सो यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर एज यू नो देयर आर सो मैनी ऑर्गन्स प्रेजेंट एंड दे आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, बट दीज ऑर्गन्स आर somehow coordinated with each other. They are somehow coordinating with each other and performing the task or the activity that is provided to them, and that activity is performed smoothly. I hope this much is clear to you, control and coordination. तो आगे चलते हैं. So here comes the term stimulus. What is stimulus now? Okay, any change in an organism's internal or external environment that causes the organism to react to the change. So आपको पता है, since organism has to live or has to cope up with its environment, organism अपनी environment में ही रहता है. Okay, तो उस ऑर्गेनिज्म को अपने एनवायरनमेंट से कुछ चेंजेस का सामना करना पड़ता है. सो एनी चेंज इन एन ऑर्गेनिजम्स इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दैट कॉजेज द ऑर्गेनिज्म टू रिएक्ट टू द चेंज. सो कोई भी चेंज जब ऑर्गेनिज्म की एनवायरनमेंट से उसको मिलती है, चाहे वो एनवायरनमेंट फिर बाहर से हो या ऑर्गेनिज्म की अपनी अंदर की बॉडी से उसे कोई चेंज का सामना करना पड़ता है, तो उस चेंज के अगेंस्ट ऑर्गेनिज्म कैसे रिएक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टिमुलस. सो एनी चेंज, कोई भी चेंज अगर एक ऑर्गेनिज्म को एनवायरनमेंट से आती है, चाहे वो विद इन द बॉडी हो, it may be either from within the body or from the external environment. So how organism react to that change, that is called as stimulus. Now what is response? The reaction of an organism to stimulus. तो अब कोई भी अगर हमें कोई भी स्टिमुलस मिलता है हमारी एनवायरनमेंट में से, चाहे वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हो या फिर हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट से हो, हम उसको कैसे रिएक्ट करेंगे? So that reaction is known as response. Okay, so I hope you understood the meaning of term stimulus and response. So आपको और भी समझ में आएगा जब हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे. ठीक है.
No, stimulus is of two types, external stimulus and internal stimulus. So पहले हम external stimulus को देख लेते हैं. Stimulus that comes from outside an organism. तो जब stimulus outside environment से आ रहा है, so here is an organism and the stimulus is coming from outside environment, then this type of stimulus is called as external stimulus. So when organism is getting stimulus from outside environment, this type of stimulus is called as external stimulus. तो examples के through हम समझने की कोशिश करते हैं. You feel cold, so you put on a jacket. तो कभी कभी क्या होता है, हमें सर्दी लगती है या we feel cold, तो हम क्या करते हैं, that cold या सर्दी लगना is a stimulus for us and that stimulus is coming from external environment. तो you put on a jacket. तो हम लोग क्या करते हैं उसके रेस्पॉन्स में, हम लोग या तो स्वेटर पहन लेते हैं या फिर कोई जैकेट लगा लेते हैं. दैट इज रेस्पॉन्स. सो व्हेन वी फील कोल्ड, दैट इज अ स्टिमुलस, एंड व्हाट वी डू इन रेस्पॉन्स, वी पुट ऑन सम जैकेट और सम स्वेटर. ए स्नेक लॉन्चेस एट अ रैबिट, सो इट रन्स अवे. जब स्नेक झपटता है एक रैबिट पे, तो दिस इज अ स्टिमुलस. स्नेक का उस पे जंप करना या लॉन्च करना, दैट इज अ स्टिमुलस. सो व्हाट रैबिट डू इन रिस्पॉन्स, इट रन्स अवे. तो रैबिट रिस्पॉन्स में क्या करता है, वो वहां से भाग जाता है. इट इज वेरी हॉट सनी डे, सो ए डॉग सिट्स इन द शेड. तो क्या होता है, अगर बाहर बहुत गर्मी है, बहुत हॉट है क्लाइमेट, तो डॉग, दिस इज अ स्टिमुलस टू अ डॉग कि गर्मी है. सो व्हाट डॉग डू इन रिस्पॉन्स, इट गोज और चला जाता है और कहीं शेड में बैठ जाता है या शेडो में बैठ जाता है. सो दिस इज एक्सटर्नल स्टिमुलस एंड दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. ये सारे के सारे स्टिमुलस जो हैं आउटसाइड एनवायरनमेंट में से आ रहे हैं, जिनके अगेंस्ट फिर जो एनिमल्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं. ठीक है. नाउ इंटरनल स्टिमुलस. A stimulus that comes from inside an organism is called as internal stimulus. जब एक organism की अपनी अंदर की बॉडी में से कोई stimulus मिलता है, फिर उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स करता है. ठीक है. So that type of stimulus is internal stimulus. When we are getting stimulus from within our body. ठीक है. So here is an organism and it's showing, the arrow shows that this is getting stimulus from within the body. So internal stimulus. ठीक है. तो examples क्या है, You feel hungry, so you eat some food. जब भी हम लोगों को भूख लगती है, और when we feel thirsty, तो हम लोग ये that is stimulus coming from within the body that you are hungry. So what we do in response, we eat some food. Okay, या तो हम लोग फिर पानी पीते जब हमें प्यास लगती है. Okay. A dog feels sick, so its body triggers a fever. So a dog जब बीमार होता है, that is some stimulus coming from within the body. Okay, या human beings या हम लोग भी जब बीमार होते हैं, so we got a stimulus from within the body and how our body responses to it is हमारा temperature rise हो जाता है and we are suffering from, तो हमें फीवर हो जाता है. ठीक है. सो आई होप इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टिमुलस इज क्लियर टू यू. एग्जाम्पल्स भी दे दिए. अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में स्टिमुलस रिस्पॉन्स का थोड़ा सा मैं आइडिया आपको देती हूँ. यहाँ पे आप लोगों ने सनफ्लावर के बारे में सुना होगा. तो यू नो कि सनफ्लावर रिस्पॉन्डेड टू द लाइट ऑफ सन. तो सनफ्लावर क्या करता है, जहाँ भी सन की डायरेक्शन होती है, it get tilted towards the sunlight. So bending of sunflower towards the sunlight is an example of stimulus and response. So how स्टिमुलस सी, सनलाइट का उस पर पड़ना इज अ स्टिमुलस एंड और जो सनफ्लावर रिएक्ट करता है दैट इज द रिस्पॉन्स. एंड यू माइट हैव हर्ड देयर इज अ प्लांट नेम एज टच मी नॉट. बॉटेनिकल नेम ऑफ प्लांट इज माइमूसा प्यूडिका. सो व्हाट दैट प्लांट डू, जब भी हम उसके लीव्स को टच करते हैं, सो दैट इज द स्टिमुलस दैट इज गोइंग टुवर्ड्स द प्लांट. तो रिएक्शन में वो क्या करता है, या रिस्पॉन्स कैसे करता है, वो अपने लीव्स को ड्रूप इन कर लेता है या अपने लीव्स को ऐसा भी बोल सकते हैं कि फोल्ड कर लेते हैं. सो द टचिंग, सो हमारा उसको टच करना इज द स्टिमुलस और उसका लीव्स को फोल्ड कर लेना या ड्रूप इन कर लेना इज द रिस्पॉन्स दैट प्लांट इज शोइंग. आई होप दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स इज क्लियर टू यू. सो आई हैड गिवन यू एनफ एग्जाम्पल्स. नाउ
कोऑर्डिनेशन को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं. फॉर अ प्रॉपर रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस मैनी ऑर्गन्स इन द बॉडी शुड वर्क टुगेदर. अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो स्टिमुलस के अगेंस्ट प्रॉपरली रिस्पॉन्स करे, तो आवर ऑर्गन्स हैज़ टू परफॉर्म वर्क टुगेदर. तो हमारे ऑर्गन्स को मिलजुल के काम करना पड़ेगा. मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेशन मीन्स टू वर्क इन कोऑर्डिनेशन, टू वर्क together. So if we want that our body should respond to a particular stimulus properly, so our organs had to perform work together. The working together of various organs in an organism to produce a proper response to a stimulus is called coordination. So यही organs का मिलजुल के coordinate करके काम करना, ताकि एक stimulus के against हमारे जो organs है वो properly response कर सके, that is what we called as coordination. अब एनिमल्स और प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट वे में हो जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिफरेंट है. सो इफ आई से कि प्लांट्स आर लेस कम्प्लेक्स टू दैट ऑफ एनिमल्स, दैट येस प्लांट आर लेस कम्प्लेक्स, और प्लांट में थोड़ा सा ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है दैट समहाउ डिफरेंट देन दैट ऑफ एनिमल्स. In animals, control and coordination is done by nervous system and endocrine system. तो animals की बात करें, ये पूरा का पूरा जो control और coordination का process है, इसको दो systems control करते हैं. One is nervous system and second is endocrine system. तो ये आपको डिटेल में बताएंगे nervous system और endocrine system क्या होता है. If we talk about plant, control and coordination is done by chemical substances called plant hormones or phytohormones. तो plant की बात करें, उनमें nervous system जैसा कुछ भी नहीं होता. plant में ये control and coordination overall जो है ये plant hormones control करते हैं. plant hormones को हम लोग phytohormones भी बोल देते हैं. ये chemicals होते हैं जो plant में overall control and coordination का जो process है वो complete करते हैं और वो carry out करते हैं.